The early release of 11 prisoners convicted for the gang rape of Bilkis Bano and murder of at least 7 persons, including her 3-year-old child, during the 2002 Gujarat riots has triggered protests across the country. On August 28, Mumbaikars too came out in solidarity with Bilkis Bano, demanding the revocation of the convicts' release at Bandra's Carter Road Promenade. People like well-known poet Amir Aziz, actress Shayoni Gupta, and a number of social activists participated in the protest. सिगरेट भी पीती हैं और जिंदगी भी जीती हैं। सिगरेट भी पीती हैं, जिंदगी भी जीती हैं और निकालती बालों की छाल में जाती हैं। As the Supreme Court will soon hear the matter, we asked people at the location and those joining the protest whether justice will be served. Here's what they had to say. Whatever she has gone through was already being subject to the worst of humanity. And she did everything right after that, went through the democratic steps that one must go through to seek justice. They were convicted for crimes which I feel we must reinstate. Crimes of killing her 3.5-year-old child by smashing the head, gang raping her mother, killing multiple members of her family. And after all that, you give them remission. And this demand is very simple across all states. Send them back to jail. They are convicted criminals, send them back to jail. That's all. Today we are here because जैसे कि आप सब जानते हैं और पूरे देश में ये बात मतलब फैल चुकी है कि 15 अगस्त आज़ादी के दिन, जिस दिन हम लोग 75वां आज़ादी का दिन मना रहे थे, उसी दिन बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया। तो एक तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और बहुत सारी उन्होंने स्कीमें लाई हैं, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड ऑल, बट और एक तरफ आप किसी औरत के 11 बलात्कारियों को इस तरह से रिहा कर दिया गया, तो इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? I think this is a really sad reflection on what our country has become. Something as horrific as what had happened to her like more than 20 years ago and what's happening to her again shouldn't be up for debate. I think this whole thing that happened here where the police were not letting us raise slogans or use our posters for demanding something as basic as this is just this is not done. I think we need to speak up more. We need to speak up more often, and we need to sustain this level of protest to actually make sure she gets at least some semblance of justice. Today we've collected at the Carter Road. We tried to do a protest, but police gave us a half kind of a permission. I don't know why. It's a free country. We should be allowed to express our views and views on something so bad that has happened in our country that our heads should be down in shame. On the 76th year of our independence, where we are supposedly celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 11 people are released from the jail in Gujarat who are convicted of 7 murders and a rape of a pregnant woman during the Gujarat riots. Her name is Bilkis Bano. It is a household name these days. Thanks to the Gujarat court and the government who released these 11 people who committed this heinous crime. हमारा एक ही मांग है इसके अंदर कि ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसको रिवर्स किया जाए। इसके ऊपर ज़्यादा तमाशा और ज़्यादा डिस्कशन करके इसको खिचड़ी नहीं बनाना है। ये कोई विचार विमर्श का टॉपिक ही नहीं है। इट्स क्लीन एंड क्लियर। उनके ऊपर चार्जेस लगे, चार्जेस प्रूव हो गए, उन्होंने अपनी टर्म काट रहे थे, तुम उनको बाहर निकाल के कैसे ला सकते हो? और ला रहे हो तो उसको गार्लैंड कर रहे हो, स्वीट्स कर रहे हो। ये सिर्फ बिल्किस बानो की ही बात नहीं है, देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ आज तक जस्टिस नहीं हुआ है और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके केसेस खुलकर सामने भी नहीं आए हैं। और बिल्किस बानो के साथ जिस तरह का उसके साथ हादसा हुआ था 2002 के गुजरात राइट्स में, उससे किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी जितना खौफनाक और दर्दनाक वो था। और कैसे मतलब उन कैदियों को रिहा कर दिया गया, और जब रिहा कर दिया गया तब लोग उनके सपोर्ट में कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, उनका बिहेवियर अच्छा था। तो बिहेवियर अच्छा था क्या मतलब वो उन्होंने जो रेप किया वो जस्टिफाई है? अगर उनका बिहेवियर अच्छा था तो फिर वो जेल में क्यों गए? बिकॉज उन्होंने एक हीनियस क्राइम किया था ना। तो क्या मतलब है उनको रिहा करने का? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी बलात्कारी होंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा इस तरह से?
I'm not able to digest a fact that a committee has recommended a name of 11 rapists who have gang raped a women, who have killed around 15, 17 family members of an innocent minority community member. And that too on occasion of Azadi Ka Amrut Mahotsav, 75th Independence year, they have been released. It is very unfortunate to see. And if we talk about judiciary, it is very unfortunate to see the court being so lame in taking decisions on such important matters. We live in a democratic country which gives the right to every citizen equally. But why minority or people from specific community are being oppressed? What kind of mentality a Supreme Court judge in this country is having? He should be unbiased. He should stick to the constitution which states. I don't understand. As a responsible citizen, I believe in the constitution, and I hope that Supreme Court will come up with a justice for the women who have been gang raped. But by looking at today's scenario and all the communal politics happening around, and it is very unfortunate to see that the government's interference has become so drastically in the judiciary, where it was not seen in the earlier days. So, as an Indian citizen, as a responsible citizen, I hope that she'll get a justice. But to be very honest and realistic, views of me is I don't think that innocent women will get a justice. No hopes. Sorry. हम जो क्राइम कर रहा है, जो 3 साल के बच्चे को ऐसे हीनियसली मारा है, जो प्रेग्नेंट लेडी को 11 लोगों ने अब्यूज़ किया है और काफ़ी लोगों को उन्होंने मारा एक ही फैमिली में। हम किस तरीके से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम सब ने, जो भी लोग हैं हमारे इंडिया में, इन सब ने ये इशू के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि हर लोग अगर ऐसा क्राइम करके छूटेंगे तो कोई भी इस देश में सेफ नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया होगा वो बोल रहे हैं कि वो लोग संस्कारी है, ब्राह्मण है, इस बेसिस पे उनको छोड़ा है। तो मुझे पता नहीं, वो अगर संस्कारी है, ब्राह्मण है, तो ऐसे संस्कारी ब्राह्मण लोग करेंगे ही नहीं बेसिकली। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है और जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, मे बी वो जाके रूल भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आके बड़े पोजीशन में वो लोग आ सकते हैं। तो मैं नहीं बोल सकती कि क्या होगा, लेकिन हाँ, हम पॉजिटिव शायद अप्रोच रख सकते हैं। अगर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बात किया तो शायद कुछ हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें। हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और ये प्रोटेस्ट इसके लिए जो रेप हुआ है, गैंग रेप, उसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया है, ये गलत है। बिकॉज़ वो अभी छूट गए हैं, फिर बाद में वही चीज़ उनके दिमाग में चलता रहेगा और वो वही चीज़ वापस से करने का ट्राई करेंगे। तो उनको छोड़ना ये गलत, सबसे गलत डिसीज़न है। बिकॉज़ वो गैंगस्टरिंग जो ऐसे रहते हैं ना, एक सिंगल पर्सन का भी जो थॉट होता है ना, वो ऐसे घूमता रहता है। मीन्स हम लोग जो कर रहे हैं वही बार बार कर रहे हैं, तो एक सिंगल पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है। तो वो तो पूरा एक गैंग है, तो उनका गैंग ग्रो मतलब रोकना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ऐसे कैसे छोड़ दिया उनको, वो तो पूरा गलत ही है। और आजकल तो हम लोग मतलब इजीली फ्रीडम नहीं मिलता, बहुत जगह पे ऐसे फ्रीडम नहीं मिलता। और जब हमें फ्रीडम मिल रहा है तो ऐसे लोग को छोड़ दिया जा रहा है। तो हमें फ्रीडम के नाम पे मिल क्या रहा है? फ्रीडम के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये रॉन्ग है। आप उनको फिर से सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। 2002 में जो राइट्स हुए थे गुजरात के, ये एक पॉलिटिकल का थ्रू से देखना नहीं चाहिए था। अभी जो इनको रिलीज़ किया गया है, जो भी कन्विक्ट है 11 लोग, अगर 15 अगस्त को अगर रिलीज़ ही करना है था किसी को, संजीव भट्ट को रिलीज़ करना चाहिए था। IPS ऑफिसर है जो गुजरात राइट्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको सज़ा दी गई थी। फ़िलहाल अभी जेल में ही है। अभी इनको 11 लोग को कन्विक्टेड है, उनको लाइफ टाइम की सज़ा दी गई थी। इनको रिलीज़ करके और उनको सम्मान जो उनको नहीं करना चाहिए थी फेलिसिट करके, बहुत बड़ी गलती है। और ये आके कई और लोग को इनकरेज हो जाएगी कि बिंदास खुलेआम गलती करे, बेल हो जाए, आ जाए करके। तो ये गलती है। अगर देखो डेमोक्रेसी का 4 पिलर है, अगर चारों का 4 पिलर वीक हो जाए तो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है इंडिया। मुझे लगता है थोड़ा पॉलिटिक्स है। अभी आने वाले 6 महीने में गुजरात में इलेक्शन होने का
वाली है। तो मुझे लगता है हाँ, ये 11 लोग को छोड़ के ताकि एक वोट मेजॉरिटी लेना चाहती है। मगर ये होना नहीं चाहिए कि पब्लिक सपोर्ट करे कि जो 11 लोग को कन्विक्ट किया गया था उनको फिर से जो सज़ा दी गई थी उसी पे कायम रहे। I would request our honorable CM, PM, and all the ministers, please take a step further, take a step up from all these communal politics and bring India on a track wherein we become a superpower. We were supposed to be a superpower in 2020, but unfortunately our economy is sinking day by day. बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर हम कैसे उम्मीद छोड़ सकते हैं? तो हम बस अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छा जजमेंट नहीं आता है तो हम अपनी लड़ाई इसी तरह से जारी रखेंगे। That's it. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.